राम कबीर देवेंद्र दास जी, आप भजन की शुरुआत कीजिए। जी। आप सभी को साहेब बंदगी राम कबीर साहेब। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। पछताएगा, 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 पछताएगा। रे मन रे मन, रे मन रे मन, राम सुमर पछताएगा, 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 पछताएगा। पापी जीरा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा। पापी जीरा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा। लालच लागे जन्म गवायो, माया भरम लुभाएगा। पछताएगा, पछताएगा, राम सुमर पछताएगा। धर्मराज जब लेखा मांगे, धर्मराज जब लेखा मांगे, ता दिन कछु न बसाएगा। धर्मराज जब लेखा मांगे, ता दिन कछु न बसाएगा। कहीं कबीर सुनो भई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, संत तेरे नहीं संग तेरे नहीं जाएगा। पछताएगा, रे मन रे मन, राम सुमर पछताएगा। ओ साहेब बंदगी साहेब। राम कबीर साहेब बंदगी। अभी हमारे साथ देवेंद्र दास जी, जिन्होंने हमें सुबह में इतना अच्छा जो कबीर जी का एक भजन सुनाया, इसीलिए देवेंद्र दास जी आपका बहुत 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 आभार। वाराणसी इंडिया से जुड़े धन्यवाद। हो। રામ કબીર સર્વ ભક્તજનોને કબીર વિઝડમના આ સેશનમાં રવિવારની સવાર એટલે આપણા કબીર વિઝડમનું આપણે મળવાનું એક સ્થાનક કે જ્યાં આપણે બધા એકબીજાના વિચારો અને વિચારોની શુદ્ધિકરણની જે પ્રોસેસ કરીએ છીએ, એમાં સર્વ ભક્તજનોને શ્રી રામ કબીર ભક્ત સમાજ ઓફ યુએસએ તરફથી સદર પ્રણામ અને સ્વાગત કરું છું। આપણે દર વખતે જોઈએ છીએ એ પ્રમાણે આપ આજનું પણ સુંદર મજાનું જે ભજન રજૂ કરવામાં આવ્યું, એક કબીરજીનું પદ કે જેની અંદર કબીરજી કહે છે કે આપ પછતાશો, તમે કેવી રીતે પછતાશો, ક્યારે પછતાશો કે તમે તમારો જન્મ આપ્યો છે એનું કારણ જો તમને મળી જાય અને તમે એ કારણ પ્રમાણે જ જો તમે કાર્યરત રહો જીવન દરમિયાન, તો
તમારે પછતાવાનો વારો નહીં આવે. અને એ કારણ એ શું છે, એ જન્મ આપણો કેમ થયો છે, એનું આપણે કારણ જે જાણી જઈએ, આપણે એ પ્રમાણે જીવન પર આચરણ કરીએ તો સુંદર કબીરજીના બધા જ પદોની જેમ આ પણ એક અમૂલ્ય વિચારો ધરાવતું એક પદ આપણે સાંભળ્યું. તો આમે આપણે જોઈએ તો આપણે કાયમ વિચાર કરીએ છીએ, જેમ કે લાસ્ટ વીકની વાત કરું તો લાસ્ટ વીક આપણે કબીર જયંતિ, કબીરજીનો પ્રાગટ્ય દિન આપણે ઉજવ્યો. જ્યારે જે કબીરજી આપણા માટે ઘણું બધું વિશાળ જ્ઞાન મૂકી ગયા છે અને જેના થકી આપણે આપણા રોજ બરોજની જિંદગી સફળ અને સુખમય નિવાળી શકીએ છીએ. તો એ એમનો જે પ્રાગટ્ય દિવસનો જે પ્રગટ થવાનું કારણ, અને આપણે જોઈએ જેમ કે ગઈકાલની વાત કરીએ તો ગઈકાલે મોસ્ટલી અમેરિકામાં જેઓ વસતા છે એ લોકો માટે કે આપણે ગઈકાલે 250મી ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે ઉજવ્યો. એ પણ એક નેશનનું જન્મનું એક ઇક્વિવેલન્ટ આપણને પરિણામ આપે છે કે એ જન્મ એક નેશન પણ એસ્ટાબ્લિશ થયા, એટલે કે એની એન્ટિટી જે એક્ઝિસ્ટ થઈ એ માટેની વાત કરવામાં આવે છે. તો એ એક જન્મ જેવું છે, જેમ આપણે બધા જન્મી છે You want to અને come? Or you want to join us at the sawmill? આપણે જે પ્રમાણે Couple of રહીએ hours. રહીએ છીએ એ પ્રમાણે આપણે આ દિવસો, આ જે જન્મનું જે કારણ છે, જન્મ આપણો થાય છે, તો આ બધું આપણને થાય કે જન્મ, પ્રાગટ્ય, ઇન્ડિપેન્ડન્સ, કોઈ પણ વસ્તુનું એક્ઝિસ્ટન્સ, એ બધુંમાં કંઈક કારણ હોવું જોઈએ. અને એ કારણ શું છે, આપણને ઘણીવાર પ્રશ્ન થતો હોય છે. મારે પોતાનો જન્મનું કારણ શું છે? તો આ બધું જે વસ્તુ, આ બધા જે વિચારો આવે છે, તો એ બાબતે આપણને ઘણીવાર એમ થાય કે આપણા સદગુરુ જે કબીરજી છે, તો સદગુરુ કબીરજીએ આ સબ્જેક્ટ પર, એટલે કે આના વિશે શું કહ્યું છે, અને એ આપણને એ વિષય પર કબીરજીના શું અભિપ્રાયો હતા, એમનો શું જોવાની દ્રષ્ટિ હતી, એમણે આપણને કેવી રીતે કયા દોહા દ્વારા એમને મેન્શન કર્યું છે, તો એનું આપણને આજે આપણે સરળ રીતે સમજીશું. તો એ માટે હું અત્રે અગેઇન વારાણસી ઇન્ડિયાથી આપણા સંત જે આપણી સાથે કાયમ આપણને મળે છે, કાયમ આપણા માટે મહેનત કરીને રાત્રિના ઉજાગરો કરીને આપણી સાથે આવે છે, તો એ એવા સંત શ્રી भगीरथदासजीને હું नमन करूँ છું. અને आज मैंने वो जो अभी बताया कि और हमने देवेंद्र दास जी से भी सुना कि ये जन्म का कुछ महत्व होता है. तो कबीर जी ने हमें क्या बताया है कि ये जन्म का महत्व क्या है, जन्म क्या है. जैसे कबीर जी का एक बहुत अच्छा भी एक दोहा जो हम लोग कंठस्थ करते हैं कि जब तू पैदा हुआ, वो वाले भी वो एक जन्म के रिलेशन में ये भी बताते हैं. तो आज हमें पूरा निरंतर से यही बताइए कि कबीर जी हमारे जन्म के बारे में और जन्म लेने के बाद उसका कारण क्या है, इसके बारे में क्या समझाते हैं. राम कबीर साहेब बन के. आप सभी भक्तों को राम कबीर साहेब बंदगी. और कुछ दिन पहले यानी कि 29 जून को हम लोगों ने कबीर साहब की जयंती मनाई. और कबीर साहब की जयंती भी कितनी मनाई? 628वीं. मतलब कबीर साहब को 628 साल हो चुके, और इस जयंती में हम लोगों ने कबीर साहब के व्यक्तित्व, उनके कृतित्व पर विस्तार से चर्चा किया. बहुत सारे आयोजन हुए भारत में, अलग अलग प्रांतों में. वहाँ की सरकारों ने कबीर साहब को अपने तरीके से याद किया. इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इतने दिन के बाद भी, 628 साल के बाद भी हम लोग कबीर साहब को याद कर रहे हैं, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को याद कर रहे हैं, उनके जीवन को याद कर रहे हैं. और हम लोग आप सबके साथ भी बैठकर कबीर साहब के ज्ञान की चर्चा ही कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, कबीर साहब इस पृथ्वी पर आए
और उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा किया, अपने लक्ष्य को पूरा किया। और जिन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा किया, उनको हम लोग याद करते हैं। हमारे होने का मतलब क्या है, हम इस दुनिया में क्यों हैं, कोई तो रीजन होगा, कोई कारण होगा। तो हमारे मन में एक सवाल उठता है कि भाई, हमने यहाँ जन्म लिया, तो उस जन्म लेने का कारण क्या है और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इस संदर्भ में अगर आप देखें तो दो तरह के विचार आते हैं। इसके जवाब में अगर हम कहें तो पहला तो होगा आध्यात्मिक उत्तर, आध्यात्मिक, और दूसरा होगा सामाजिक। तो जो सामाजिक उत्तर है, आध्यात्मिक उत्तर है, उसका जवाब यही है कि हम सब जितने भी मनुष्य यहाँ पर हैं, हम सब के जीवन का उद्देश्य यही है कि हम मुक्ति प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें, अपने जीवन के जो हायर गोल है उसको अचीव करें, प्राप्त कर लें। अध्यात्म यही बताता है, और हम सभी मनुष्यों के लिए एक ही गोल तय किया हुआ है कि हम मुक्ति को प्राप्त कर लें। लेकिन यही जब हम सामाजिक स्तर पर जाते हैं, समाज के स्तर पर देखते हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वहां पर बात बदल जाती है। हो सकता है कोई व्यक्ति ये सोचते होंगे कि मेरे जीवन का लक्ष्य है मैं बहुत सारा पेड़ लगाऊं क्योंकि पर्यावरण की समस्या है। किन्हीं को लगता होगा कि बहुत से लोग गरीब हैं, मैं समर्थ हूं तो मैं उनकी मदद करूं, उनकी हेल्प करूं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने जीवन के अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए होंगे, और इस लक्ष्य को निर्धारित करने में कौन सा फैक्टर काम करता है, कौन सा रीजन काम करता है। तो मुझे लगता है कि जिस काम को करने में मुझे सुकून मिलता है, आनंद मिलता है, उस काम को मैं अपना लक्ष्य बना लेता हूं, उद्देश्य बना लेता हूं। कुछ लोग कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई चोर है और उसको चोरी करने में मजा आता है, आनंद आता है, तो क्या उसको अपने जीवन का लक्ष्य बना सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चोर को चोरी करने में आनंद नहीं आता। कभी न कभी उसके मन में ये बात आती होगी कि मैंने गलत किया है। अगर वो गलत नहीं होता तो अपने बेटे को चोर बना सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई चोर या गलत आदमी जो गलत रास्ते पर है, वो अपने परिवार के लोगों को चोर नहीं बनाना चाहता, अपने बेटे को शराबी नहीं बनाना चाहता। इसका मतलब यही है कि जीवन का जो उद्देश्य है वो सही होना चाहिए। और जब हम सामाजिक क्षेत्र में आते हैं तो वो अलग अलग हो सकता है। कई क्षेत्र हो सकते हैं, आप तय कर सकते हैं जहां आपको सुकून मिलता है। लेकिन जब कबीर साहब की दृष्टि से हम देखते हैं कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है, हमने जीवन क्यों धारण किया, तो पहली बात तो यही है कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं है। हमने जो जीवन धारण किया, ये शरीर पाया है, इसके पीछे कोई न कोई कारण रहा होगा। और उस कारण में कबीर साहब कहते हैं, कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ पूर्व जन्म का लेख। मतलब ये जो हमारा जीवन है, हम जिस रूप में आज बैठकर चर्चा कर रहे हैं, वो हमारा यही जीवन नहीं है। इसके पीछे भी अनेक जीवन रहे हैं और हमने मानव के रूप में जीवन पाया है, और इसके पीछे कुछ कारण थे। और कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। आप सब जानते हैं कि जब कोई बच्चा घर में पैदा होता है तो घर में कितनी खुशियां होती है, लोग हंसते हैं। और हंसना कभी कभी अच्छा नहीं माना जाता है ना। कोई आपको देखकर हंसे तो आपको लगेगा जैसे वो कमेंट है। तो कबीर साहब कहते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो दुनिया के लोग हंसते हैं और हम रोते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। तो हम क्या करें, कौन सा काम करें कि हम हंसें, जाते हुए हम इस दुनिया से हंसें और दुनिया हमारे लिए रोए। इसका मतलब यही है कि हमारा जो कर्म है वो अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए।
तो हमारा कर्म, कौन सा कर्म हम करें कि वो बेहतर होगा? तो अगर हम सामाजिक दृष्टि से देखेंगे तो बात यही आएगी कि हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए जो समाज के लिए लाभदायक हो। लेकिन जब आध्यात्मिक रूप से देखेंगे तो वहाँ पर व्यक्ति का अपना विकास, अपना विकास मतलब अपने व्यक्तित्व का विकास, अपने जीवन का विकास, या कहें मुक्ति की ओर जाने की बात। आप सब जानते होंगे, शास्त्र में कहा गया है कि मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। मतलब मनुष्य धर्म की पूर्ति कर लेता है। धर्म मतलब ये रिलीजन नहीं जो I think there is some technical issue. He has a Right. internet connection. ત્યાં ટેકનિકલ ઇસ્યુ આવ્યો લાગે છે કારણ કે કદાચ એમનું જે ઇન્ટરનેટ છે એ સ્ટેબલ નથી લાગતું. We can wait until he joins back. યસ સોરી. સો મીન ટાઈમ કોઈએ જો પોતાના વ્યૂ આજના જે સબ્જેક્ટ છે એ સબ્જેક્ટ મેટર પર જ તો હમણાં આપણે લઈ લઈએ અને પછી પાછળથી જેવી રીતે જોઈન થાય એમના પાસે જોઈન કરી દઈશું. સો અગેન આપણે જે વાત કરીએ છીએ એ પ્રમાણે કે જ્યારે આપણું કોઈક એક્ઝિસ્ટન્સ થાય આપણે અને જેમણે જોઈન્ટ હોય એ હેન્ડ રેઝ કરજો. ઓકે, સો આપણું જે એક્ઝિસ્ટન્સ છે, આપણો જે જન્મ છે એ જન્મનું કારણ કે અમે સાયન્સમાં કહેવામાં આવે છે કે કારણ અને કાર્ય બંને ભેગા હોય છે. Back તો him. હવે હું જોડાઈ ગયા છે સોફાર, કદાચ સારી રીતે વાત થઈ શકશે. આપ અભી थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए जी ऐसा जी था। जी नहीं कोई बात नहीं, फिर से आप तो आपका माइक हो गया जी, चालू कर दिए. थैंक यू. तो मैं बात कर रहा था धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की। तो आध्यात्मिक रूप से हम देखें तो हम अपने जीवन में धर्म की पूर्ति कर लेते हैं, और धर्म की पूर्ति के बाद हम अर्थ की प्राप्ति करते हैं। अर्थ मतलब पैसा, धन, संपत्ति। और उसके बाद अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। काम मतलब इच्छाएं। लेकिन आप देखे होंगे कि हमने धन इकट्ठा कर लिया, अपनी कामनाओं की पूर्ति कर ली, फिर भी हमारे मन में संतोष नहीं है। हमें लगता है कि कुछ ऐसा है जो छूट रहा है, कुछ पाना बाकी है। तो उस पाने की जो खोज हम करते हैं वो क्या है? मोक्ष है। मतलब क्या है? सब कुछ होने के बाद भी अगर संतुष्टि नहीं है, कुछ पाना शेष है, तो वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये आध्यात्मिक रूप से सिद्ध होता है। अच्छा, मोक्ष है क्या? मोक्ष सारे बंधनों का त्याग है। तो जो धर्म है, अर्थ है और एक काम है, ये साधन है। इसके माध्यम से, ऐसा नहीं कि इसको हम छोड़ सकते हैं, इनके साथ इनका उपयोग करते हुए हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। तो इस करनी में हमें ऐसा कर्म करना है कि दुनिया हमारे लिए रोए। जैसे हम आज कबीर साहब के लिए रो रहे हैं या कबीर साहब को याद कर रहे हैं। कबीर साहब के जाने का गम हमें लगता है कि शायद कबीर साहब रहते तो कुछ बात और होती। तो जब हम कहते हैं कि कोई ऐसा कर्म करना है कि दुनिया हमें याद करे, तो लोग परेशान होंगे कि हम क्या करें, तय नहीं कर पा रहे। तो सबसे अच्छी बात कबीर साहब कहते हैं, सबसे पहले अपने आप को विकसित करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। जैसे एक उदाहरण दूं, आप सब बरगद के पेड़ को जानते हैं। उसका बीज मुझे लगता है दुनिया में सबसे छोटा बीज होगा बरगद का। तो बरगद का बीज जब अंकुरण लेता है, अंकुरण से पौधा बनता है और पौधे से एक बड़ा विशाल वृक्ष बनता है। तो ये जो विशाल वृक्ष बनना है, तो बरगद ने क्या किया? अपने आप को एक्सटेंड किया, अपने आप को बढ़ाया,
अपना विकास किया, ऊंचाई की ओर बढ़ा। उस ऊंचाई की ओर बढ़ने में क्या फायदा है? फायदा ये है कि बहुत से लोग उस बरगद के नीचे बैठकर उसकी छाया का उपयोग करते हैं। बहुत से पक्षी उस पेड़ पर बैठते हैं, घोंसला बनाते हैं। बहुत से पक्षियां, पशु उसके फल को खाकर अपना जीवन चलाते हैं। बहुत से लोग बरगद की लकड़ी को लेकर अपना काम चलाते हैं। मतलब जब आप अपना विस्तार करेंगे, अपने आप को अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, तो आपके जीवन से परमार्थ स्वयं होगा, करना नहीं पड़ेगा। जैसे बरगद ने किया, बरगद ने परमार्थ नहीं किया, उसने अपने को एक्सटेंड किया, अपने को बढ़ाया और सारी चीजें स्वयं होने लगी। तो कबीर साहब जो कर्म की बात कर रहे हैं, ये कर्म सबसे पहले हमें अपने ऊपर करना होगा, अपने को बेहतर बनाने के लिए करना होगा। दूसरी साखी में कबीर साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मां सुन आवे काज, हाड़न होते आभरण, तुचा न बाजन बाज। अच्छा, ये हम जितने भी मनुष्य हैं, देखिए हमारे साथ कितनी विडंबना है। हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी हैं, लेकिन जब हम इस दुनिया में आते हैं तो दो ही चीज हमारे पास होती है। एक होता है रोने का कला, हम रो सकते हैं, और दूसरा है हंसना। ये कोई नहीं सिखाता, हम हंसना और रोना लेकर आते हैं, लेकिन और भी चीजें हमें सीखना पड़ता है। देखिए, तैरना सीखना पड़ता है, साइकिलिंग सीखनी पड़ती है, पेड़ पर चढ़ना सीखना पड़ता है, यहां तक कि चलना भी सीखना पड़ता है, कोई सिखाता है, और दौड़ना भी सिखाता है। मतलब हम कुछ सीखकर नहीं आते, लेकिन अपने ज्ञान से, अपनी समझ से हम कितना कुछ कर लिए, बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं। लेकिन विडंबना क्या है कि हमारे शरीर का जो मांस है वो किसी के काम का नहीं है, और हमारी जो हड्डी है उससे कोई आभूषण नहीं बनता, कुछ नहीं बनता। और इस शरीर के चमड़े से न वाद्य यंत्र बनते हैं। मतलब हमारे शरीर से कोई परोपकार नहीं होगा, कुछ काम का नहीं है। हमारा शरीर है तो हम अगर हैं तो हमारा जो गुण है वही हमारे जीवन का आधार है, वही हमारी पहचान है और वही काम का है। तो कबीर साहब कहते हैं, भाई जब आपका गुण ही मुख्य है तो उस गुण को बढ़ाना चाहिए। मतलब मनुष्य हैं तो हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि हम अपने गुणों को बढ़ाएं। तो अब बात आएगी कि गुण क्या है, कौन से गुण को हमें बढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि जिस गुण की बात कबीर साहब कह रहे हैं, वो गुण पहला है दया और करुणा। अगर आप मनुष्य हैं, आपके अंदर दया और करुणा नहीं है, तो कोई मतलब नहीं। बहुत बड़ी गुण है कि जिसके अंदर दया और करुणा है। करुणा का जो भाव है, हम किसी दुखी व्यक्ति को देखकर बिना किसी लाभ के, हमारा कोई लाभ नहीं है, बिना किसी लाभ के उसकी मदद करना, ये मनुष्य का स्वभाव है। इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, स्वभाव को बेहतर करना चाहिए। दूसरा अगर गुण हम बात करें, कबीर साहब कहते हैं, तो वो है क्षमा और विनम्रता का। अगर आपके अंदर किसी को माफ करने का गुण नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। और विनम्रता का भाव, विनम्रता क्या है? विद्या ददाति विनयम। अगर आपको कुछ चाहिए, भाई आप गुण को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? विनय का भाव होना चाहिए। विनय मतलब नम्रता। तो विनय अगर होगा तो आपको सारी चीजें मिलने लगेंगी। कोई भी ज्ञान देना चाहे, कोई भी आपसे बात करना चाहे, या ऐसा है कि अगर आपके अंदर विनम्रता है तो कोई व्यक्ति आपको अपना सब कुछ देना चाहेगा, अपना सारा ज्ञान आपको दे देना चाहेगा। तो अगर हमारे अंदर क्षमा और विनम्रता का गुण आ जाता है तो ये बड़ी बात होगी। और तीसरा है सत्य और ईमानदारी। सत्य क्या है? कबीर साहब कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। तो सत्य से बड़ा कोई धर्म तो नहीं है, और सत्य एक बहुत बड़ा गुण है। जिसके अंदर ये प्रकट हो जाता है तो समझिए वो मानव में श्रेष्ठ मानव है। और ईमानदारी की जो बात हम कहते हैं,
कई बार ऐसा लगता है ना कि ईमानदारी की बात केवल कहने में अच्छा लगता है, तो ऐसा नहीं है। इस गुण को हम सबको अपने अंदर जागृत करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति एक ईमानदार व्यक्ति की खोज कर रहा है। मैं एक ईमानदार व्यक्ति चाहता हूं, आप एक ईमानदार व्यक्ति चाहते हैं, तो हमें भी ईमानदार बनना पड़ेगा। अगर आप और हम ईमानदार चाहते तो हमें और आपको ईमानदार होना पड़ेगा। ये गुण है, सभी ऐसा नहीं होते, लेकिन करना पड़ेगा। और जो चौथा है वो है विवेक। देखिए, विवेक कह देने से ऐसा लगता है कि ये तो छोटी बात है, लेकिन अगर आप मनुष्य हैं तो आपके जीवन का उद्देश्य यही है कि आप अपने विवेक को जागृत कर सकें। तो विवेक क्या है? सही और गलत की पहचान करने की क्षमता होना। ये छोटी बात नहीं है। होता क्या है कि अभी आप जब कुछ साइन करते हैं ना, कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं या कुछ साइन करते हैं या बीमा क्लेम, बहुत सारी चीजें साइन करते हैं, तो वहां पर छुपी हुई शर्तें होती है, स्टार में, डॉट में, ऐसी चीजें होती है। तो वहां पर क्या होता है कि हम सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते। इस दुनिया में ऐसी चीजें हैं, और जिस जमाने में हम रह रहे हैं, ये तो एआई का युग है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का युग। यहाँ हम चीजों में ये तय नहीं कर पाते कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप मनुष्य हैं तो मनुष्य की परिभाषा यही ना, मनुष्य विवेकशील प्राणी है। भाई, जिसके पास विवेक नहीं वो मनुष्य नहीं। तो इस गुण को हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, और विवेक हमें सही और गलत के बीच फर्क करने में मदद करता है। अगर आप सही और गलत तय कर पा रहे हैं तो वास्तव में आप मनुष्य हैं। पशुओं में एक स्वभाव नहीं है, क्वालिटी नहीं है। और एक गुण और जो मैं कहना चाहता हूं, कि जिस व्यक्ति के अंदर अपने अवगुण को, मतलब अपने दोष, अपनी बुराई को पहचानने की क्षमता आ जाती है, उससे बड़ा कोई गुण नहीं है। कई बार होता क्या है कि जब हम अहम में होते हैं तो हमारे बुरे काम मतलब हमारे अवगुण, हमारे दोष हमें गुण ही लगते हैं। जब हम अहंकार में रहते हैं तो लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है। ये मनुष्य की पहचान नहीं, ये मनुष्य का गुण नहीं। मनुष्य हमेशा अपने अवगुणों की पहचान करे, अपने दोष की पहचान करे, अपनी कमियों की पहचान करे, और उसको जो एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार करता है, वही वास्तव में मनुष्य है। या ऐसा कहें कि मनुष्य होने के लिए ये जरूरी है, मतलब हमारे जीवन का उद्देश्य यही कि हम विवेकवान बने। कबीर साहब हम सबको सचेत करते हैं कि भाई, आप मनुष्य बन के आए तो आप अपने जीवन के उद्देश्य की पहचान करिए। और कबीर साहब इस पहचान को आध्यात्मिक रूप से सिद्ध करते हैं। कबीर साहब हम सबको आध्यात्मिक बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं, बहुत भलो रे भाई औषध, बहुत भलो रे भाई, मानुष देह देवन को दुर्लभ, सोई देह तुम पाई। तजी परपंच अविद्या पाखंड, छाड़ो मान बढ़ाई, साधु संग भज सतगुरु को, सोई सकल सुखदाई। अगर आप मनुष्य हैं तो आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि आप इन कर्मों को करें। अब देखिए, हम कहते हैं कि मनुष्य बन के पैदा हुए, इसमें बड़ी बात क्या है? ये समझ में तब आएगी जब आप ज्ञान पर उतरेंगे, विवेक करेंगे। देखिए, पहली बात यह है, जो मनुष्य है वो पशु और देवता के बीच की योनि है। कबीर साहब कह रहे हैं कि जो हमें मानव तन मिला है, शरीर मिला है, वो देवों को दुर्लभ है। ये तो बड़ी गजब बात है। हम जिन देवताओं की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उनको ये मानव तन मिलना मुश्किल है, और हम उस मानव तन को लेकर रो रहे हैं। तो देवता और को दुर्लभ इसलिए है कि ये जो हमारा शरीर है ये कर्म योनि है। जो मनुष्य का शरीर है, मनुष्य योनि है, ये कर्म योनि है। हम इसमें कर्म करके अपने बंधन को छुड़ा सकते हैं, अपने बंधन को गहरा कर सकते हैं। आप ऐसे ही समझिए कि जैसे मैं अपने हाथ को रस्सी से बांध भी सकता हूं और अपने हाथ को रस्सी से खोल भी सकता हूं। ये तब संभव है जब ये मानव का शरीर है।
आप पशु को बांध दीजिए अच्छे से, तो शायद वो छुड़ा ना पाए, और देवताओं के पास तो शरीर ये वाला है नहीं। तो जो पशु जीवन है और देव जीवन है, देवता का जीवन है, दोनों भोग योनि, वो अपने कर्मों के भोग को भोग रहे हैं। लेकिन जो मनुष्य हैं, हम लोग हैं, हम अपने कर्म करके अपने बंधन को छुड़ा सकते हैं, कर्म योनि। देवता कर्म करके अपने भोगों को और बढ़ाना चाहते हैं। भाई जो हमने कर्म करके इकट्ठा किया है, एक न एक दिन खत्म हो जाना है, फिर क्या करेंगे? तो मनुष्य ही अपने कर्म को करके मुक्त हो सकता है, बंधन से परे हो सकता है। तजी परपंच, परपंच कहते हैं ना दिखावा करने को। बहुत से लोग जैसे साधु नहीं है, साधु का वेश धारण कर लिए, ईमानदार नहीं है, लेकिन उनकी बातों से लगेगा वो ईमानदार है। तो कबीर साहब कहते हैं कि अगर आप मनुष्य हैं तो सबसे पहले आपको अपने प्रपंच हटाना पड़ेगा। जो आप नहीं हैं वो दुनिया को क्यों दिखा रहे हैं? जो आप हैं वही अगर दुनिया को दिखाएं तो ये सही है, बेहतर है। दूसरा है अविद्या। अविद्या का मतलब क्या है? अ लगने से विद्या का अभाव, अज्ञान मतलब ज्ञान का अभाव। तो जो ज्ञान है वो क्या है? सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो मुक्ति दे। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हम किताब पढ़ते हैं, सुनते हैं, ज्ञान चर्चा सुनते हैं, क्या ये विद्या नहीं है? ये विद्या के लिए सहायक है, ये ज्ञान के लिए सहायक है। पुस्तक सहायक हो सकती है लेकिन वो ज्ञान नहीं है। कबीर साहब के यहाँ ज्ञान अलग है। कबीर साहब कहते हैं कथता बकता सुनता सोई, आप विचारे सो ज्ञानी होई। आप विचारे मतलब जो अपने पर विचार करता है। अपने पर मतलब इस शरीर पर नहीं, इस शरीर को चलाने वाला कौन है, हमारे अंदर रहने वाला जीव क्या है, आत्मा क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन है, कहां से आए हैं, और इस दुनिया में हम रह रहे हैं तो हमारे होने का मतलब क्या है। इस पर जो विचार करता है वही ज्ञानी है। कबीर साहब कह रहे हैं कथता बकता सुनता सोई, आप विचारे सो ज्ञानी हुई। हम दुनिया पर विचार कर सकते हैं लेकिन अपने ऊपर विचार करना बड़ा कठिन है। अपने को जानना ये ज्ञानी का लक्षण है, कबीर साहब कहते हैं। फिर क्या है? पाखंड। आप देखे होंगे कि बहुत से लोग, पाखंड मतलब एक तरह से दिखावा। दिखावा का मतलब क्या है? मैं माला जपता हूं, आपको दिखाने की क्या जरूरत है? मैं लोगों को लोगों की मदद करता हूं, आपको दिखाने की क्या जरूरत है? भाई मैं माला फेरता हूं मेरे लिए है, मैं मदद करता हूं लोगों की मेरे लिए, दिखा के उसको करूं, ये पाखंड है। कबीर साहब कहते हैं ना, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जिसकी चाकरी तैसी मुनसब देत। अरे वो राम जी तो देख ही रहे हैं ना, हम माला फेर रहे हैं या लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पाखंड करने की जरूरत नहीं। अगर आप इंसान है तो पाखंड मत कीजिए, मनुष्य है तो पाखंड मत कीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और है छाड़ो मान बढ़ाई। हम हमेशा मान बढ़ाई में डूबे रहते, मेरा किसी ने प्रशंसा किया नहीं, दुख की बात है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आप लोगों की मदद करते हैं और किसी ने कह दिया कि अरे आप हमारी मदद क्या करते हैं, आप तो ठगने वाले व्यक्ति हैं, उसी दिन से मैं अच्छा काम करना छोड़ दिया। ये क्या हुआ? मान बढ़ाई हुआ। जब आप अच्छे काम करने के लिए निकलते हैं तो आपको लोगों के कटु वचन भी सुनने को मिलेंगे, लोग आपको बुरा भी कहेंगे, सभी लोग अच्छे नहीं कहेंगे। इससे आप अपने कर्म को मत छोड़िए, आप अपने रास्ते से भटकिए मत। और साधु संगति, देखिए कबीर साहब ने कहा कि अगर आप मनुष्य हैं तो आपके जीवन का एक उद्देश्य ये होना चाहिए कि अच्छे लोगों की संगति करें। कई बार हमें ये पता नहीं चलता कि हम बुरे लोगों की संगति कर रहे हैं तो इससे नुकसान क्या है। मैं तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन आपको पता चलेगा कि आप जिसके साथ बैठते हैं, जिसकी संगति में रहते हैं, आप उसी के जैसा हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। अगर आप अच्छे लोगों की संगति में बैठते हैं, साधु की संगति,
सज्जनों की संगति, अच्छे लोगों की संगति में, तो आप अच्छा हो जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं ना, कबीर संगति साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। जो इत्र बेचने वाला होता है ना, उसके पास आप जाएंगे, उसके साथ रहेंगे तो वो सुगंध आपको मिलेगा, भले आप खरीदे चाहे ना खरीदे। तो अच्छे व्यक्ति के साथ बैठने से, उसकी संगति करने से आपके जीवन में बदलाव आएगा, बेहतर आप इंसान बनेंगे। तो कबीर साहब कहते हैं साधु संगति और भज सतगुरु को। सतगुरु का मतलब कोई अच्छे गुरु के सानिध्य में बैठना। अगर हम इतना कर पाए तो हमारे जीवन का जो गोल है, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, हम उसको पाने की ओर आगे बढ़ जाएंगे। फिर कबीर साहब कहते हैं, लख 84 जीव जंतु में मानुष जन्म अनूप, सो तन पाया नहीं चेतो तो धरो पशु स्वरूप। कहते हैं कि अगर आपने मनुष्य का तन पाया और आपने समझदारी नहीं दिखाई, क्या समझदारी दिखाना है? समझदारी यही कि दुनिया को जैसा है वैसा देखें, जो चीज जैसा है वैसा हम ग्रहण करें और अपने अंदर अच्छे गुण को भरें। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा? हम पैदा हुए थे पशु के जैसा, फिर हम पशु रह जाएंगे। हम पैदा हुए थे पशु के जैसा और मनुष्य हो जाएं, ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मनुष्य होने का मतलब क्या है? मानवता हमारे अंदर हो, बेहतर गुण हमारे अंदर हो, विवेक हमारे अंदर हो, ये मनुष्य होने का लक्षण। चेत कहने का मतलब है समझदारी। कई बार हम अपनी समझदारी को गिरवी रख देते हैं, दूसरे के हाथों में सौंप देते हैं, और मनुष्य स्वयं अपनी समझदारी को आगे बढ़ा सकता है, समझदारी दिखा सकता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, मानुष जन्म नर पाई के, चूके अब की घात, जाय परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। देखिए, कबीर साहब हम सबको ये समझाना चाहते हैं कि अगर आपने मनुष्य जीवन पाया है तो उसका उपयोग कर लेना चाहिए। ये अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। देखिए कितना अच्छी बात है कि हम इस शरीर में हैं और इस शरीर में होने के साथ हमारी चेतना है, हमारे पास हाथ है, पैर हैं, और हम जो सोचते हैं उसको करने की क्षमता हमारे अंदर, बेहतर से बेहतर करने की क्षमता है हमारे अंदर, संभावना है। तो कह रहे हैं कि अगर इस मनुष्य जीवन को पाके आपने अभी दांव नहीं खेला, कहते लोग ना कल करेंगे। बहुत से लोग आप भारत में आएंगे ना तो कबीर साहब की एक साखी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मेरे मित्रों ने एक साखी बनाई थी इसका उल्टा। वो कहते थे, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतना जल्दी क्या पड़ा है, जीना है अभी बरसों। अब मैं अपने मित्रों से पूछता हूं कि क्या भाइयों, क्या जीना है बरसों? बोलते नहीं। कोरोना में बहुत से हमारे मित्र चले गए, उनको देख के उनकी समझ आ गई कि ऐसा नहीं है। मतलब क्या है कि ये अवसर आपको मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, और इसकी कब तक ये जीवन रहेगा नहीं कह सकते। तो कबीर साहब कहते हैं, अभी क्यों नहीं हम सचेत हो जाते, अभी हम चेत क्यों नहीं जाते, अभी समझदारी क्यों नहीं करते? अगर हम समझदारी नहीं करेंगे तो क्या होगा पता है? भव चक्र, मतलब ये संसार जो है एक चक्र है, सर्कल है, और उस चक्र में हम घूमते रह जाएंगे, पार नहीं होंगे। मैंने एक चित्र बनाया, आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ये जो चित्र है, शायद ऐसा दिखाऊंगा तो दिखेगा। हम जन्म लेते हैं, ऐसे दिखाता हूं। हम जन्म लेते हैं और फिर क्या करते हैं? जीवन जीते हैं, लाइफ है। और फिर क्या करते हैं? हमारी डेथ हो जाती है। जन्म है, जीवन है, मृत्यु है, और फिर क्या है? रीबर्थ है, फिर से जन्म लेना। जन्म ऐसा ऐसा सर्कल चल रहा है। लेकिन अगर मोक्ष की बात करें तो इस मृत्यु से हमें यहां जाना पड़ेगा, पार होना पड़ेगा।
तो लोग बोलते हैं कि हम इस दुनिया में हैं, मुक्ति क्यों चाहिए, हम इसी में आनंद मना रहे हैं। तो मुक्ति इसलिए चाहिए कि जब आप दौड़ में होते हैं ना, आप दौड़ते हैं तो दौड़ का आनंद नहीं ले पाते। आप देखे होंगे कि जो खेल हो रहा है, लड़ाई होती है, कहीं कुश्ती होता है, तो जो दो लोग लड़ रहे हैं वो तो अलग तरह से लड़ रहे हैं, लेकिन जो बाहर खड़े होते हैं वो बहुत आनंद लेते हैं। तो ये जो सर्कल है, जो मुक्त पुरुष है वो बाहर है, दौड़ से बाहर है, और दौड़ से बाहर होकर वो दुनिया का आनंद लेता है। मतलब जो मुक्त पुरुष है, जिसने मुक्ति को जान लिया, वही इस जीवन का आनंद ले सकता है। मतलब कि हमारे जीवन का एक उद्देश्य ये भी है कि हम मनुष्य हो जाएं और इस जीवन का आनंद ले। अभी हम जीवन का आनंद नहीं ले पाते। जैसे अभी हमारी जो चेतना है, कॉन्शस है, वो बहुत ही बंधनों में बंधी है, बहुत सारे माया जाल में बंधी है, तो हम अपने अंदर शरीर में उठने वाली संवेदना को नहीं समझ पाते। जैसे मान लीजिए हमारे पेट में दर्द होती है, तो इस दर्द को हम अनुभव कब करते हैं, जब वो पीक पर होता है, हाई हो जाता है। लेकिन जब प्रारंभ में ये दर्द शुरू हुआ होगा तो बड़े पिन पॉइंट से शुरू हुआ होगा, छोटे से। अब हम अपने शरीर के अंदर होने वाली चीजों को नहीं समझ पा रहे। इसका मतलब क्या है, हमारा जो कॉन्शस है, हमारी जो चेतना है, वो इतना भारी हो चुका है या दुनिया में इतना फंस चुका है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि दुनिया क्या चल रहा है, हम उसमें आनंद कहाँ ले रहे हैं। जैसे एक अंगूर हम खाए ना, तो अंगूर को जब हम जीभ में रखते हैं तो उसका टेस्ट क्या आता है, दो ही टेस्ट आता है, एक तो हो गया खट्टा, एक हो गया मीठा। किसी से आप पूछो अंगूर कैसा है तो बोलेगा खट्टा है या मीठा है। लेकिन उस अंगूर को आप अगर आधे घंटे में खाएंगे, एक अंगूर को आधे घंटे में अगर खाएंगे, तो आपको समझ में आएगा उसमें कितने टेस्ट हैं। कोई भी चीज केवल खट्टा मीठा नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे टेस्ट हैं। तो एक एक जो समझदार व्यक्ति है, जिसने अपनी चेतना को जागृत कर लिया या मोक्ष को पा लिया, मुक्त हो गया, वो इस जीवन का आनंद ले सकता है, इस दुनिया का आनंद ले सकता है और आनंदमय हो सकता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि भाई, अगर आप मनुष्य बनकर पैदा हुए हैं तो यूं ही अपने जीवन को मत गवाइए, व्यर्थ में न जाने दीजिए। क्यों? कबीर साहब कहते, रात गवाई सोए कर, दिवस गमाया खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। अरे हम मनुष्य हुए, हम ऐसा दांव क्यों नहीं करते कि हम भी कबीर साहब की जैसे परंपरा में आगे बढ़ जाएं? उनके ज्ञान को क्यों धारण नहीं करते? हमने अपने जीवन के अधिकतर समय खाने और सोने में बिता दिया, मतलब व्यर्थ गंवाया हमने। हमें क्या करना था? अपने गुणों को बढ़ाने का प्रयास करना था, अपने जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए लगाना था। उसके लिए हमें जगना पड़ेगा। जगने का मतलब क्या है? एक तो सोना हुआ, हम रात में सोते हैं, आंख बंद करके सोते हैं, और बहुत से लोग दिन में भी सोते हैं, आंख खुली रख के सोते हैं, मतलब इस दुनिया से वो अवेयर नहीं है। कबीर साहब कहते हैं हमें जागृत रहना पड़ेगा, अपनी आंख को खुली रखनी पड़ेगी, और व्यर्थ में समय गंवाने के बजाय हमें चिंतन मनन करना पड़ेगा। क्योंकि ये मानव जीवन जो है हीरा जैसा है। हीरा कीमती होता है, कभी कभी मिलता है। तो मनुष्य का तन मिला है तो ये यूं ही नहीं है, इसे यूं ही व्यर्थ जाने नहीं देना है। कौड़ी के भाव में क्यों हम इसको बदलें, अगर हम ऐसा नहीं करते। देखिए कबीर साहब कहते हैं कि अगर हमने सचेत नहीं हुए, अपने जीवन को यूं ही गंवा दिया, तो क्या होगा? मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार। दोबारा कब मिलेगा पता है? नहीं। हम मनुष्य के रूप में पैदा हुए, ठीक है, अभी हैं, फिर से हम मनुष्य होंगे, ये जीवन मिलेगा, कब मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। तो मानुष जीवन दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। फल अगर पककर गिरता है तो फिर से डाल पे लगेगा कि नहीं? पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए, अब की बिछड़े ना मिले, दूर पड़ेंगे जाए। भाई इस शरीर में एक चेतना है, शरीर जड़ है और चेतना का संयोग से जीवन है।
अगर दोनों खत्म हो जाए तो क्या होगा, फिर से ये शरीर मिलेगा कि नहीं। इस शरीर को यूं ही नहीं समझना चाहिए। मानव तन जो है एक साधन है। जैसे आपके पास गाड़ी है, जितनी अच्छी गाड़ी होगी आप अपने लक्ष्य तक उतना ही बेहतरी से पहुंच पाएंगे, समय से पहुंच पाएंगे। तो ये जो हमारा शरीर है वो भी साधन है। इस साधन का उपयोग अपने जीवन के लक्ष्य की पूर्ति के लिए करना चाहिए, जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, रात गंवाई सोए कर, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अमोल जैसे रहा बहाए। जैसे रहा बहाए, सत्य को नहीं पहचाना। जैसे रहा बहाए, सत्य को नहीं पहचाना, राम भजन को छोड़ भरम में है भटकाना। देखिए, कबीर साहब कहते हैं राम को पाना है, राम का भजन करना है, लेकिन वो राम कौन है? हमारे घट में रमने वाला राम है। जो अपने को जानने की बात कह रहे हैं ना, वो राम को पाने की बात है। देखिए, हमारे जीवन का लक्ष्य कबीर साहब ये तय करते हैं कि हम जब मनुष्य हैं, राम को पाना है। तो राम भजन को छोड़ भरम में है लपटाना। हम भरम में भूल गए। मनुष्य होने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम भरम में भटकते रहें। ज्ञान की ओर दौड़े। जगी चेतना तब, जब आ चढ़ा बुढ़ापा। कहते कि जब शरीर थक गया, तब हमें समझ में आया कि जीवन में हमने पाया क्या, हम इस दुनिया में आए थे करने क्या, और क्या क्या कर बैठे। एक भारत में एक चलता है, स्लोगन चलता है, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। मतलब हम आए थे अपने आप को जानने, ईश्वर को जानने पाने, लेकिन हमने क्या किया, हमने संसार में पूरा समय बिता दिया। कपास मतलब कॉटन, उसमें अपना समय बर्बाद किया। हमने कपास काटने में समय बिता दिया। करना क्या था, क्या कर बैठे। तो कबीर साहब कह रहे हैं, जगी चेतना तब, जब चढ़ा बुढ़ापा, राम भया है याद, बदन जब थर थर कांपा। जब सारी चीजें खत्म हो गई तो राम की याद आती है। राम की याद हमें पहले आना चाहिए था। राम को अगर हम पहले याद कर लेते, राम को समझ लेते, तो बात बन जाती। मतलब राम को जानने का मतलब क्या है? स्वयं को जानना। राम को जानने का मतलब अपने आप को जानना, और अपने आप को जानना ही कबीर साहब के अनुसार हमारे जीवन का उद्देश्य है, हमारे जीवन का लक्ष्य है। जिसने अपने आप को जाना, वही अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर पाया है, और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है। ये बातें तब समझ में आती है जब हमारा अधिकतर समय बीत जाता है। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत आभार। થેન્ક યુ. બહુ સુંદર રીતે તમે જે સમજાવ્યું કે જેનો પર્પસની આપણે વાતો કરીએ છીએ તે કે પ્રથમ તો આપણે આપણી જાતને જાણવું જોઈએ કે કોણ છે આપણે, શું કરવા, શું આપણો પર્પસ છે. આપણે જાતે જ્ઞાની થઈ આપણે જાતે આપણે એને જીવનમાં જે ઉદ્દેશ્ય આપણે નક્કી કર્યા હોય એ ઉદ્દેશ્યને લઈને આપણે આપણા જીવનને એટલું મજબૂત બનાવવું જોઈએ જેથી તમે પોતાનું ઉદ્દેશ્ય જાણી શકો, તમે એના ઉદ્દેશ્ય પ્રમાણે કરી શકો અને તે કાયમ તમારે યાદ રાખવાનું હોય. આની સાથે જો કોઈએ પોતાના વિચારો અહીં રજૂ કરવા હોય આ સબ્જેક્ટ મેટરમાં જ, તો પ્લીઝ રેઇઝ યોર હેન્ડ. અને અમે, હા રાજભાઈ રામ કબીર. भगीरथ दास जी, राम कबीर साहेब बंदगी। राम कबीर। बस, तो आपने एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट जो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आजकल हम क्या करते हैं कि जो भी कुछ ले आते हैं बाजार से, गैजेट वगैरह, वहाँ पे उसका जो ऑपरेशनल मैनुअल होता है वो मिलता है गैजेट का। मनुष्य ही ऐसे हैं जिसको ऑपरेशनल मैनुअल के बिना ही हम जन्म लेते हैं, और खुद को आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि खुद को ये क्या है। हमारे दो दो उद्देश्य शायद मुझे लगते हैं मेरे अनुभव के। एक तो आपने बताया कि भाई सोर्स में मिल जाना है, या मोक्ष कहो, या अंतिम अपना स्वरूप क्या है,
हम कौन है, वो एक आध्यात्मिक, वो तो आपने सही बताया। दूसरा, ये जो शरीर मिला है तो उसमें हम कैसे मनुष्य की सेवा करें, क्योंकि अलग अलग सबको अंदर जो हम बोलते हैं टैलेंट और स्किल, कि जो भी हम थोड़ी बहुत खुद में पता नहीं कैसे आती है, लेकिन वो जो कला आती है और उसको हम बढ़ावा देकर अच्छी तरह से मनुष्य की सेवा करते हैं। तो अ, अ, ये जो दोनों के सामने चलने का, दोनों को याद करके फोकस, क्योंकि आज क्या हो गया कि मैं भी खुद को देख रहा हूँ कि हम जो ये सो कॉल इंफॉर्मेशन ओवरलोड के ज़माने में रहते हैं तो फोकस रहता नहीं। तो जो जो फोकस रखना पड़ता है कि भाई हाँ, एक मनुष्य की तरह क्या सेवा करनी है, मनुष्य की जो संसारिक सेवा की बात कर रहे हैं। और दूसरा इक्विवेलेंट, कि भाई ये मार्ग ऐसा नहीं कि भाई 80 साल के होने के बाद हम आध्यात्मिकता की बात करेंगे, राइट। वो तो फिर आपने बता ही दिया कबीर साहब कि जब जब बुढ़ापा आता है तब तो एनर्जी भी नहीं होती, इतनी क्षमता भी नहीं होती, और शरीर अगर अच्छा नहीं होता तो पूरा फोकस शरीर पे ही कंप्लेन में ही चला जाता है। तो ये दोनों जो है अच्छी तरह से पकड़ के रखना, फोकस करके रखना, तो ये कैसे हम कर सकते हैं। और जितना भी जवानी में इतना ज्ञान मिल जाता है तब बहुत अच्छा, जैसे यूनिवर्सिटी का तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, वो तो हमें बस कुछ स्किल देते हैं, डिग्री देते हैं और आप जाके जॉब करो और अपना गुजारा करो। लेकिन जो सच्चा धर्म, सच्चे जो मनुष्य की सेवा का जो हमारा उद्देश्य है, वो कैसे पता चले और हम बैलेंस कैसे रखें, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। जी, बहुत अच्छा सवाल राज भक्त जी का है। देखिए, ये तो तय है कि हम जिस दुनिया समाज में रहते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ हम बेहतर कर सके, बेहतर करें, होना भी चाहिए, क्योंकि हम बेहतर चाहते हैं। दुनिया को न देखें कौन क्या कहता है, सबसे पहले अपने को देखें, हम क्या चाहते हैं। हम एक बेहतर इंसान को चाहते हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति मेरा मित्र हो जो झूठ बोलता हो, नहीं चाहेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति को हम नहीं चाहेंगे जो बेईमान हो ना। तो अगर ऐसा व्यक्ति को हम नहीं चाहते तो हम बेहतर व्यक्ति की खोज कर रहे हैं, अच्छे व्यक्ति की खोज कर रहे हैं। तो केवल हम अच्छे व्यक्ति की खोज कर रहे हैं, हमें अच्छा व्यक्ति चाहिए, तो हमें सबसे पहले अच्छा होना पड़ेगा। इस बात को हम समझने के बाद भी स्वयं अच्छा बनने की कोशिश नहीं करते। अब चूंकि हम पशु तो नहीं है, मनुष्य हैं, विचार कर सकते हैं, और विचार करने के बाद जो रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, उस पे हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमको अपनाना चाहिए। हम उसको कहते क्या है, छोड़ो जाने दो, बाद में देखते हैं, चलेगा ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमें जब ज्ञान हुआ वैसे ही उसको पालन करना चाहिए। और कबीर साहब के रास्ते में तो यही है, मैं कहता आखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। कागज में लिखा है क्या, बाद में देखेंगे। स्वयं के अनुभव से तो पता चल रहा है कि एक बेहतर इंसान होना जरूरी है। हर कोई बेहतर हो जाए तो मैं बेहतर हो जाऊं। समाज में रहते हैं तो हमें बेहतर करना भी है, बेहतर काम करना है। आप देखें जिन लोगों ने बेहतर किया है उनको आज हम याद कर रहे हैं, चाहे वो कबीर साहब हों या जो भी महापुरुष हुए हों। तो हम बेहतर क्यों न करें, हम दूसरे का इंतजार क्यों करते हैं। हमें खुद आगे बढ़कर करना है। ये बात समझ आएगी ज्ञान को सुनने के बाद, मनन करने से। और दूसरा है कि हम अपनी चेतना को, जो हमारी चेतना कॉन्शस है, उसको कैसे हम शुद्ध करें, कैसे बेहतर करें। तो उसके लिए कुछ ध्यान साधना भी करनी पड़ सकती है, लेकिन वो तो बाद का विषय। सबसे पहले तो विचारों के स्तर से चीजें सही हो जाती है तो उसको अपना लेना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। बहुत बड़ी बातों को अगर हम नहीं अपना पाते तो छोटी एक बात को जीवन में अगर हम बांध ले, गांठ बांध ले कि हम करेंगे, तो शायद बेहतर हो जाएगा। तो सामंजस्य बैठ जाएगा, मैं बेहतर बनूं,
हम दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, स्वयं कभी बेहतर बनने की कोशिश नहीं करते। मनुष्य होने का मतलब है पहले हम बेहतर बने, दुनिया अपने आप बेहतर हो जाएगी। अपनी समझ को ठीक करें, दुनिया समझ ठीक हो जाएगी। तो इस तरह हम सामंजस्य बैठा सकते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। राइट, बहुत धन्यवाद। क्योंकि वो जो हम गुजराती में बोलते हैं कि जैसी आपकी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो जी अपनी दृष्टि को शुद्ध करो, अपने आप को शुद्ध करो, तो ऐसे ही अब जो हम जो देख रहे हैं पूरे का पूरा वो बदलाव अंदर से आ जाएगा। तो आपने जो समझाया, यस, फोकस शुड बी नॉट द वर्ल्ड बट आवर ओन, क्योंकि वहीं पर तक हमारा कंट्रोल है, दुनिया पे तो हमारा कंट्रोल है नहीं। तो बस जो जहाँ भी कंट्रोल है उसको हम एक एक स्टेप हर दिन जी प्रतिदिन बस शुद्ध जो जो भी भाषा हम बोलते हैं उसमें करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद प्रफुल्ल भाई। क्योंकि अपना मालिक हम खुद हैं। जी हाँ ओके। सही बात। प्रफुल्ल साहेब भाई राम बंदगी कबीर। भगीरथ दास जी, जी, साहेब बंदगी राम कबीर। ये समाज की जागृति का एक थोड़ा प्रश्न है कि आपने जो पाखंड और प्रपंच की बात की, तो अभी हमारे समाज में क्या है कि ऐसे साधु तो नहीं कह सकते, कोई पाखंडी बाबा भी आ जाते हैं वो ज्ञान देने पे, वो पधरामणी करने को बोलते हैं कि भाई हम तुम्हारे घर आएंगे और बातें करेंगे। ऐसे जो, तो कबीर जी क्या कहते हैं कि भाई सच्चे साधु किसको हमको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे समाज में बात होती है कि भाई ये साधु को क्या सुनने का, क्या घर पे लाने का, उसको तो वो सब तुमको लूट के आश्रम बनाएंगे, उधर आराम से रहेंगे, अच्छा घर बनाएंगे और ऐसा करेंगे। वो मानव सेवा की बात करते हैं तो भाई गाय तो इधर है नहीं, गाय की सेवा कैसे करे, तो वो इसके बहाने भी वो ले जाते हैं, जो कुछ देते हैं वो। और तो कैसे पहचाने, कबीर जी क्या कहते हैं इसमें कि भाई साधु, सच्चा साधु को कैसे पहचाने कि जो असली मानव सेवा जो हम करने वाले हैं, जिसको प्रभु ने दिया है वो, तो इसके बारे में समाज में थोड़ी जागृति रहे, ऐसा कबीर जी के विचारों को आप समझाइए। थैंक यू। देखिए ये बड़ा बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, और हम लोग भी इस बात से जूझ रहे हैं कि सही साधु कौन हो, क्या हो। अच्छा देखिए, हम लोग जो है ना, हम सब लोग उसमें, आप भी मैं भी, तो हमारी जो दृष्टि है, देखने का जो नजरिया है, हम साधु के ज्ञान की परख नहीं करना चाहते। हम क्या चाहते हैं, साधु के एक बाहरी आवरण को देखना चाहते हैं, और वो जो बाहरी आवरण है वो कोई भी बना सकता है। आपके मन में आएगा ना कि एक ऐसा व्यक्ति हो जिसकी लंबी दाढ़ी हो, जटा हो, त्रिपुंड हो और लाल वस्त्र गेरुआ पहना हो या सफेद वस्त्र भी पहना हो, तो शुरू से हमने इस बात को देखा है तो तुरंत हम सोचते हैं कि ये साधु है। तो हमने रूप को महत्व दिया, बाहरी चीजों को महत्व दिया, बनावटी को महत्व दिया। तो ये शुरू से चला आ रहा है, ऐसा नहीं। रावण को आप देखिए, सीता का हरण जब किया उन्होंने तो क्या किया, साधु का वेश बनाया। मतलब ये हमारे परंपरा से चला आ रहा है कि जब भी कुछ ऐसा करना है तो साधु का वेश बना लो, क्योंकि लोगों का विश्वास है एक रूप पर, और वही चला आ रहा है, शुरू से हमने देखा। लेकिन मेरा कहना यही है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, इस हमारे विश्वास का हनन होता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि वो रूप कोई भी बना सकता है। और कबीर साहब कहते हैं, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। जिसका मन बदला रहेगा तो कोई जरूरी नहीं कि वो महल में रहता है या जंगल में रहता है। कोई जंगल में रहने से ज्ञानी नहीं हो जाता, साधु नहीं हो जाता, और महल में रहने से कोई असाधु नहीं हो जाता। साधुता मन का भाव है, मन का बदलाव है। ये मन बदलना कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है। अब चूंकि बात है कि हम कैसे पहचाने, तो जी मैं आपको माफी चाहता हूँ यहाँ पे जी थोड़ा सा रुकवाने के लिए, कि क्योंकि ये जो आज का जो सब्जेक्ट है ना हमारा, वो प्रफुल्ल भाई आज हम बात कर रहे हैं कि हम हमें कैसे करना है,
हमें अभी साधु का पहचान ये थोड़ा डिफरेंट लाइन हो गया है। और इसके अगर प्रफुल्ल भाई की इच्छा है तो हम दूसरी दफा ये सब्जेक्ट भी ले लेंगे। तो थोड़ा सा हम निकल रहे हैं इस सब्जेक्ट से। आज अच्छा का सब्जेक्ट विषय से हमारा यही है। जी 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 अच्छा हम निकले। हम कैसे हमारे हमारे पहचान हम कैसे पहचाने, हम खुद को कैसे पहचाने। अच्छा तो प्रफुल्ल भाई सॉरी, वो आप छोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। और गुरुजी आप ये सब्जेक्ट के अभी टाइम भी हो गया है, तो सभी ये बता दो पहले तो कि आज जो बोलते हैं ना कि भाई खुद को, और प्रफुल्ल भाई का जो क्वेश्चन है कि थोड़ा सा बाहर जाने का, तो वैसे मैं भगीरथी दास जी का बात करना चाहूंगा यहाँ पे कि वो वहां पे इतनी रात होने के बावजूद भी पूरी दिनचर्या तो उनकी होती ही है, फिर भी हमारे लिए अभी वो वहां पे जग रहे हैं। हमारा जो प्रश्न है वो भी, तो उसका भी टाइम वो खुद अपनों को अवेलेबल करते हैं ना। ये यहाँ पे जब ये बोलते हैं हम कि कितना वो आपको देना चाहते हैं हमारे लिए, तो बहुत आपका जो ज्ञान यही। तो आप अभी जो गुण की बात की, जो अपने वो जो मेन्यू वाली बात की कि भाई मेन्यू हमें जो है मिलता जीवन में हमारे जात को सुधारने के लिए, तो ये गुण आपने जो बताया दया धर्म करुणा, तो इसके बारे में एक दफा बात करके बाद में हम यहाँ पे समापन करेंगे। तो आप ये गुण बता दीजिए पहले। देखिए जब हम कह रहे हैं कि मनुष्य होने का मतलब है गुणवान होना, मतलब हमारी उपयोगिता कहीं नहीं है। अगर आप उपयोगी नहीं हैं तो आपका कोई मूल्य नहीं है। तो समाज में हम उपयोगी कैसे बने, हमारी उपयोगिता कैसे सिद्ध हो? तो उपयोगी तो तभी हम होंगे जब हमारे अंदर कुछ गुण होगा। जैसे पशु है, पशु का शरीर काम में आता है, उसकी हड्डी काम में आता है, उसके चमड़ा काम आता है, बाकी चीजें काम में आती है। लेकिन मनुष्य का नहीं। तो उसका जो गुण है, गुण में क्या आएगा, हम कौन से गुण की बात करें? तो कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर हमारे अंदर करुणा है, बहुत से लोग होंगे, कुछ मान लीजिए आप परेशानी में हैं और लोग बोलते हैं इधर बनारस में, इधर जाने दो, छोड़ो, हमसे क्या लेना देना। ये मनुष्य का स्वभाव नहीं है, ये पशुता है। आप देखेंगे पशुओं के बीच में अगर आपने रोटी फेंका तो उसमें जो सबसे ताकतवर होता है वो खाता है, लेकिन मनुष्यों में ऐसा नहीं है। तो ये मनुष्य का गुण, इसको और विकसित करना चाहिए कि करुणा का भाव आए। करुणा मतलब हमारे अंदर दूसरे के दुख को समझने का भाव है, और उसमें कोई शर्त नहीं है, कोई लाभ की आशा नहीं है। तो ये गुण हमारे अंदर होना चाहिए। दूसरा मैंने कहा था कि सत्य की बात, तो सत्य तो होना चाहिए, सत्य हमें चाहिए। ईमानदारी की बात, ये सारे जो गुण हैं, और उसमें विवेक। विवेक मतलब सही गलत का फैसला हम कर पाए। ये छोटी बात लगती है कि व्यक्ति कोई, हम तो करते हैं सही गलत का बात करते हैं, भाई क्या सही क्या गलत हम तो रोज फैसला करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम छिपी हुई शर्त को नहीं पहचान पा रहे, हमारी दृष्टि अभी उतनी पैनी नहीं हुई है कि हम सही और गलत को एज इट पहचान पाए, जिसके कारण हमारे जो जीवन में भ्रम है, अविद्या है, और उस अविद्या के कारण ही हमारा बंधन है। तो ये गुण अगर हमारे जीवन में आ जाता है तो हम मनुष्य होने को सार्थक कर पाएंगे। मनुष्य हैं, हाथ पैर आंखें हैं, एक केवल ढांचा है। अगर उसके अंदर विवेक नहीं है, उसके अंदर दया नहीं, उसके अंदर करुणा नहीं, उसके अंदर प्रेम नहीं है, तो मनुष्य शरीर में रहकर भी पशु ही है, और वो अपने जीवन के उद्देश्य से, लक्ष्य से कोसों दूर है। केवल मनुष्य के रूप में पैदा हो जाने से उसके जीवन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, ज्ञान को पाकर उस पे जीवन को ढालना पड़ता है, उस पे आगे चलना पड़ता है। अगर ऐसा कर पाएंगे तो मनुष्य होने की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा बताया कि जैसे जो गुण है, पहले हमारे जन्म के बारे में हमने वो पहले पूछा था कि क्या उसका रीजन क्या है, हमें कैसे पता चले। तो ये सभी गुणों का हमें चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा, और ये चेकलिस्ट के बाद हमें देखना। तो ये अभी सन्मुख भाई आपका क्वेश्चन अनम्यूट करजो। થોડા સમય પણ આજે થઈ ગયો છે, તો તમારો છેલ્લો પ્રશ્ન લઈ લઈએ અને થેન્ક યુ। અનમ્યુટ કરજો કાકા, અનમ્યુટ કરજો, અનમ્યુટ કરજો, અનમ્યુટ કરજો તમે, અનમ્યુટ કરજો તમે। સન્મુખ કાકા અનમ્યુટ કરજો। ઓકે, ગો હેડ। સૌને રામ કબીર, ટૂંકમાં જ કહેવાનું, ભગીરથ દાસ જે
બહુ સરસ કબીર સાહેબનું તમે સિમ્પલ ભાષામાં સમજાવ્યું. આ ટાઈમે તમે આવીને બહુ સરસ વાત છે. તમે પણ એ જણાવ્યું અને મારે પણ એ જ ઇન્સિસ્ટ કરવાનું છે કે રામ રતનને જ્યાં સુધી પહેચાને નહીં અજાણ, જગત રચી મન ભાવને ત્યાંમાં રહે ભૂલાન. એમાં જ આપણે આમાં જ દુનિયામાં અટવાઈને અભાન રહીને આપણે આ બધું ભૂલેલા છે. પણ આપણે કામ કરવાનું છે, ખાલી વાતો કરવાની નથી. રામ રતન એટલે કહી ગયા કે રામે શું કરેલું, રામે શું એક્ઝામ્પલ રાખેલું કે સત્ય, સેવા અને વચન પાલન અને સાધુઓની સેવા એને જે કર્યો તે રામ રતન એ છે અને તે પ્રમાણે આપણે કરવાનું છે. અને આજે આ વિષય કરતા મારે એમ કેવું કે ગઈકાલે અમેરિકાની 250મી વર્ષગાંઠ આપણે અહીંયા આવ્યા, વર્ષો થયા અને સારી વસ્તુ અહીંયા શું છે એ સ્વીકારવાની છે. અને આપણે અહીંયા પોઝિટિવ કંઈ થઈ શકે તો આપણે પોતે પણ કરવાનું છે અને ભાગ લેવાનો છે. અહીંયા આપણે કમ્પ્લેન કરીએ કે આ તો આમ થાય છે અને પેલું થાય છે, એવા ગાળા તો આવે, ઊંચ નીચ આવે દરેક દેશોમાં. પણ આપણે આ દેશમાં આવ્યા છે, આપણને આ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી છે, તો આપણે પોઝિટિવ અહીંયા શું કરીએ તે કરવાનું છે. અને એ માટે આપણે અહીંયા એમાં ઝંપલાવવું પડશે. અને હવે જે વૃદ્ધો લોકો છે એનેથી તો જે થાય તે કરશે. પણ મારી રિક્વેસ્ટ સદા રહી છે કે યંગ જનરેશન અહીંયા આ ગવર્મેન્ટમાં ભાગ લે અને ફાળો આપે, એ ખાસ મારી વિનંતી છે. અને તો જ આપણે આ કબીરજીનું જે જ્ઞાન છે તે આપણે જાતે કરીને બતાવવાનું છે. આજે જ્યારે પૈસાનું પ્રાધાન્ય છે અને પૈસાની બોલબાલા છે, સામાન્ય માણસ જે કામ કરે છે તેને કોઈ ગણતું નથી. એ બધું આપણે જાતે કરવાનું છે અને કરાવવાનું છે આપણા બાળકો પાસે. એ જ મારે કહેવું. અને ભગીરથદાસજીએ સરસ સમજાવ્યું અને તે પ્રમાણે આપણે કામ કરીને બતાવવાનું છે. એ જ વસ્તુ મારે કહેવાની છે. હેપી 205 ફોર અમેરિકા. અહીંયા સારા સારા ગુણો છે, તે હવે પછીના વખતે ચાન્સ મળશે તો હું એ અંગે વાત કરીશ. આજે અહીંથી વિરમું છું. થેન્ક યુ. રામ કબીર, થેન્ક યુ સન્મુખભાઈ. તમે બહુ સરસ આશા પણ આપી અને તમે કહ્યું એ પોઈન્ટ આપણે લઈશું જ વેરી સૂન કે આપણે 250મી જન્મ જયંતિ વખતે આપણે અમેરિકાને, જેમ કે આપણે પોતેની વાતો કરીએ છીએ આજે, એટલા માટે આપણે શું આપી શકીએ. વેરી ગુડ. વી વિલ ડુ. આપણે એકાદ સેશન હવે નજીકમાં કરીશું, ટાઈમ અવેલેબલ કઈ રીતે છે એ પ્રમાણે. સો ભગીરથદાસજી, થેન્ક યુ વેરી મચ અગેન. તમે બહુ સુંદર રીતે અમને સારું જ્ઞાન આપો છો. આપણા સદગુરુ કબીરજીના વિચારો ને અમારા લેવલ પર તમે લઈ આવો છો, એ માટે તમારો ઘણો ઘણો આભાર. થેન્ક યુ. હવે અહીં અંતિમ પ્રાર્થના કરી આપણે છૂટા પડીશું અને આવતા રવિવારે ફરી પાછા મળીશું. આવી રીતે સદા સારા સારા વિચારો અને સારા સારા સબ્જેક્ટની પણ વાતો લઈ આવો. એ માટે તમારો ઘણો ઘણો આભાર અને બધા જોડાતા રહેજો. હરિઓમ. પૂર્ણ એ છે, પૂર્ણ આ છે, પૂર્ણથી તો પૂર્ણ ઉગ્યું છે બધું. પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ આપી દ્યો ભલે, શેષ પાછળ પૂર્ણ રહેવાનું સદા. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. રામ કબીર સાહેબ બંદગી. રામ કબીર સાહેબ બંદગી.